सिर्फ ये बिल अदायगी के मुतालबे के ऊपर उन्होंने मार मार के इसके हाथ पैर दिए। बच्चे ने कहा चल जेड़े बंदे दे दो ना पीती उन्होंने जनाब अगू बंदे बुंदे इकट्ठे किए सारा कुछ काटते उन्होंने साढ़े से दावा बोल दिया। अपेरेंटली एक भत्ता माफिया है, अच्छा, जिनका मकसद ये था कि उन्होंने अपना दबदबा कायम करना उस इलाके के ऊपर। मेरे 5 बंदे जख्मी 6 हुए 6 जख्मी हुए ते ताड़े हाथ भी स्वेल हुए हैं। हाँ जी, मेरे हाथ में उंगल टूट गई है। वहाँ पे हाजी साहब ये कह रहे थे कि बताएं कोई गुंडा या कोई बदमाश आपके इलाके में है तो मैं शाम को पकड़ के दिखाते हैं। ऐसे ही ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो आईजी साहब को बाकायदा नोट करना चाहिए कि ये वो कोई नॉर्मल या कॉमन ऑफेंसेस नहीं है, बिल्कुल ये स्पेशल 780 का ऑफेंस अट्रैक्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, इतवार को चाय की दुकान पर मुसल्ला अफराद आए और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। क्यों बनाया? क्या ज़ाती कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई थी, या इसके पीछे क्या महरुकात हैं? इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे, वो ज़रा वो बताएं क्या वाक़या है, लड़ाई क्यों हुई, फायरिंग करने वाले कौन थे, क्या आपकी इनके साथ कोई अदावत है? नहीं सर, कोई दावत नहीं, कोई कुछ नहीं। चाह मंगाई इन्होंने, चाह पीती है, बच्चा छोटा गया बर्तन लैन भांडे लेना तो पैसे दे दो, 300 रुपया बना थोड़े वाले। उन्होंने कहा जी इतने पैसे नहीं बनते। बच्चे ने कहा चल जेड़े बंदे दे दो ना पीती उन्होंने कहा जी इन्ने दे दो, बहस कर ला। उन्होंने चपेड़ा चपूड़ा मारिया, वो बच्चा रोंदा साडे कोल आ गया जी मैंने इन्हें चपेड़ा मारिया। तो बच्चे ने मेरे को कुछ है मार दी। उन्होंने जनाब अगू बंदे बुंदे इकट्ठे किए सारा कुछ काटते उन्होंने साढ़े से दावा बोल दिया। सही है। उन्होंने फिटिंग की करते सानू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ 40-50 ਬੰਦਾ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ? ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਗੈਂਗ ਹੈ, ਅਲਦਰਾਨ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 4-5 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, 2 ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੇੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਚਲਾਵੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਦਨਾਨ ਦਾਨਿਸ਼। ਅੱਛਾ। ਦਨਾਨ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੌਫਰ ਰਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੌਫਰ ਰਾਤ ਫਰਾਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਮੇਰੇ 5 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ 6 ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਵੈਲ ਹੋਏ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, FIR ਸਾਡੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਲੀ ਕੋਈ ਪੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ अपना होटल खोल रहे हो? ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਖੋਲਿਆ। आज खोले? नाज़रीन, ये देख लें कि जब जहाँ पर लाहौर और पंजाब का दिल है और गढ़ लाहौर में, ऐसे नहीं कि गांव वगैरह में जहाँ पे पुलिस की इतनी रसाई नहीं है, एक शहर में इतना खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। और 40 से 50 बताए जा रहे हैं जो मुसल्ला अफराद आए थे, जिनमें कईयों के हाथ में वेपन था कि 5 से 6 लोग हैं, वीडियो में आप देख भी रहे हैं, और उन्होंने धावा बोल दिया। अब इसके पीछे क्या FIR में लिखा है, किस कौन कौन सी दफ़ा शामिल की हैं? हमारे साथ लॉयर भी मौजूद होंगे, रहील डार साहब, उनसे पूछते हैं, उनकी कानूनी राय लेते हैं उनसे। सामने भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? दुआएं। अच्छा रहील भाई बताएं, ये आप इनका केस देख रहे हैं, ये बेसिकली एक दहशतगर्दी फैलाई गई और दुकान पे धावा बोल दिया, मुसल्ला अफराद थे, हाथ में पिस्टल थे, 40-50 लोग थे जैसे ये बता रहे हैं। आप बताएं अपनी कानूनी माहिरीन की राय से क्या हो? असल में ये जो मामला अभी जो आप लोगों ने देखा, अभी आपने सुना भी है, ये मामला जिस जगह पे पेश आया है
अपेरेंटली एक भत्ता माफिया है। अच्छा। जिनका मकसद ये था कि उन्होंने अपना दबदबा कायम करना उस इलाके के ऊपर, ऐसे लोगों को डरा के। अब जिनसे अभी ये ज्यादती जिनके साथ हुई है, इनका क्या कारोबार है? ये वहाँ पे चाय पराठे का इनका छोटा सा एक ढाबा है, एक दुकान है, रिज़्क रोटी कमा रहे हैं, अपनी रिज़्क रोटी कमा रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के उबाश समझ लें या गुंडा नासिर समझ लें, इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि इस बाजार में अपना दबदबा कायम करना। इसकी वजह से उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इनसे जो भी इसने चाय पी या खाना खाया उसका बिल नहीं अदा किया। इन्होंने कहा क्या था कि मुझे ये बिल अदा कर दें। सिर्फ ये बिल अदायगी के मुतालबे के ऊपर उन्होंने मार मार के इसके हाथ पैर दिए, इनका सर फोड़ दिया है। ये एक नहीं 4-5 लोग जख्मी, शदीद जख्मी हुए हैं। और ये जो वकूआ सर जर्द हुआ है, ये कोई रात की तारीखी में नहीं, ये बाजार में बाकायदा भरे बाजार में पूरे अवाम आते जाते लोगों ने वकूआ देखा। ये मसला ये जो लोग आए हैं वहां पे, ये बाकायदा वेपन के साथ थे। इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद डंडों और सोटों के साथ इन पे तशद्दुद किया है। मेरा हसन भी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मेरा मुतालबा यहाँ पे ये है कि हमारे आईजी साहब ये क्लेम करते हैं, पॉडकास्ट मैंने सुना रिसेंटली, वहां पे आईजी साहब ये कह रहे थे कि बताएं कोई गुंडा या कोई बदमाश आपके इलाके में है तो मैं शाम को पकड़ के दिखाता हूँ। दिखाते हैं ऐसे। ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो आईजी साहब को बाकायदा नोट करना चाहिए कि ये मेहनत कश लोग हैं, ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये वहां पे कोई नजायज फरोशी नहीं कर रहे थे कि जो हराम की कमाई नहीं इनकी, कि ये वहां पे मेहनत करें और इस तरह के गुंडा नासर और भत्ता माफिया आए और इनसे कहें कि मुफ्त में और फ्री में हमें चीजें दें। गुजारिश मेरी यहाँ पे आईजी साहब से ये है कि FIR दर्ज हो गई। मैं SHO की कारकर्दगी के ऊपर सवाल नहीं उठाता। ठीक है, मानते इस बात को कि हर वकूआ SHO एकदम जाके कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब वकूआ सरजर्द हो गया है, अब तो SHO होश के नाखून ले कि एक शख्स नहीं है। ये वीडियो में बाकायदा आप देख सकते हैं कि दर्जनों शख्स ने इनके ऊपर हमला किया है। किसी एक की गिरफ्तारी अभी तक सर अमल में नहीं लाई गई। और सर मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह हमारी CCD मुतहरिक है, हर जगह काम कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, इंशाल्लाह ताला हमारी पुलिस भी बड़ा अच्छा काम कर रही है और जल्द ये कैफे किरदार को पहुंचेंगे और एक एग्जाम्पल कोड करेगी पुलिस हमारी कि ऐसे जो लोग हैं मुसल्ला जो दहशत फैलाते हैं उनका निशान नहीं रहेगा। अच्छा मुझे बताइए अब पे कौन कौन सी दफात लगी हैं? हसन भाई अपेरेंटली क्योंकि उस वक्त तो मेडिकल मौजूद नहीं था, मेडिकल की 337 की दफात मेरे मुताबिक, क्योंकि इनका हाथ टूटा गया, फ्रैक्चर हुआ है, तो 337 F5 जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है वो लगना चाहिए। वो यकीनन बाद में आजाद किया जाएगा। मुतालबा यहाँ पे हसन भाई ये है कि ये जो एक्ट आप लोगों ने देखा है वीडियो पे, ये कोई नॉर्मल या कोई जाती रंजिश नहीं है। सही है। ये सिर्फ इस एक्ट की इंटेंशन अक्यूज की सिर्फ ये थी कि वो इलाके में अपना दबदबा कायम करे। तो जहां पे ऐसा एक्ट किया जाए कि खौफो हरास फैलाया जाए मोहल्ले में, इलाके में, तो उस पे ये 788 एक्ट होती है। बिल्कुल मेरा मुतालबा यहाँ पे ये भी है कि इन दफात को रिवाइज किया जाए और 788 की दफा इसके ऊपर बाकायदा लगाई जाए। उसकी रीजन ये है कि एज पर द लॉ ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट जो सेक्शन 6 है वो बाकायदा ये कहता है कोई भी ऐसा शख्स किसी मोहल्ले इलाके में ऐसा इकदाम करेगा जिससे पूरे इलाके में खौफो हिरास फैलेगा और उसकी दहशत फैलेगी, तो वहां पे 788 अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। तो ये वो एक एग्जाम्पल एक्ट है जो इस अक्यूज ने किया है। ये कोई 506B या कोई नॉर्मल से 148 और 149 जो PPC की दफात FIR में ऐड की है, ये वो कोई नॉर्मल या कॉमन ऑफेंसेस नहीं है। बिल्कुल ये स्पेशल 788 का ऑफेंस अट्रैक्ट किया गया क्योंकि मकसद सिर्फ यही है ना, जाती रंजिश तो कोई थी नहीं लोगों के साथ। पहली दफा पहले आते थे पैसे देते, इस दफा आए उन्होंने पैसे नहीं दिए, बदतमीजी की, मारा झगड़ा, दुकान तोड़ दी, उन्होंने चीजें फेंक दी। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि हमें अदम बर्दाश्त की कमी हो गई है? हसन भाई अदम बर्दाश्त, जो आप अदम बर्दाश्त कह रहे हैं ना, ये अदम बर्दाश्त का ये केस अदम बर्दाश्त का नहीं है। ये केस सिर्फ अपना दबदबा कायम करने का, अगर अदम बर्दाश्त का होता तो प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो जाता ना। इतना आप असला लेके 15 से 20 दर्जनों अफराद डंडे सोटे के साथ हमला नहीं करेंगे अदम बर्दाश्त में। बिल्कुल वो मौके के ऊपर एक वो हीट ऑफ द आर्गुमेंट होता है, एक मौके के ऊपर एक ऐसा मोमेंट बन जाता है कि डंडे सोटे चल जाते हैं एक फर्द की तरफ से। ये बाकायदा मुनज्जम जमात प्लान करके आया पूरा 15 वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल 15 से 20 अफराद, अगर तो ये कोई उनका आप कहते हैं अदम बर्दाश्त का मामला होता तो 15-20 अफराद का ना होता, किसी एक फर्द का होता ना, या 15 से 20 अफराद की ही जो अदम बर्दाश्त मजरूह हो चुकी हुई थी। क्लियर केस है एक भत्ता माफिया का। मकसद सिर्फ ये है कि बाजार में इनका दबदबा कायम हो जाए, और अगर यहाँ पे एग्जाम्पल सेट ना की गई हसन भाई और इनका दबदबा कायम हो गया तो ये बहुत ही बुरी एग्जाम्पल बनेगी। तमाम दुकानदार अब नजरें इस केस पे लगा के बैठे हुए हैं, क्या है कि अब इन गुंडों का, इन बदमाशों का बनता क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन ये हमारे साथ है रहील डार साहब, और आप बहुत उनकी खूबसूरत बातें कानून की रोशनी में उन्होंने सारी अपनी एविडेंस सामने रखी हैं। और क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या
फिर एक दफ़ा लाहौर में ये ऐसा गुंडा राज चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि सीसीडी ने बहुत मुतहरिक है ऐसे लोगों के खिलाफ, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पुलिस भी इस पर एक्शन लाजमी लेगी। हसन शहबाज को इजाज़त है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।